In time, speed and distance, first of all, we'll be going for a basic relation. We have a basic equation. Distance is equal to speed multiplied by time. Now we can see there are three terms: distance, speed, and time. Now we can establish three different relations. First of all, we see, suppose a person moves at a constant speed of 10 kilometers per hour. He is not ready to change his speed. Okay. Now he says, I will travel only for 3 hours. So what will be the distance? 10 multiplied by 3 is 30. Say if he travels for 5 hours. So what will be the distance? 50. If he travels for 2 hours, what will be the distance? 20. Now you can see when time increases, distance also increases, and when time decreases, distance also decreases. So we can say both of them are moving in same direction. When time goes up, distance goes up. When time goes down, distance goes down. So we can say distance varies directly as time under the condition when speed is constant. We can have one more thing. If I take ratio of d1 and d2, what is ratio of d1 and d2? इन दोनों का रेशियो बता सकते हो आप क्या है? What is the ratio? 3 by 5. 3 by 5. Now can I have ratio of t1 and t2? 3 by 5. 3 by 5. So we can say ratio of distance is same as ratio of time when speed is constant. जब स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के इक्वल होगा, और वी कैन से टाइम का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल होगा. नाउ अभी आपने स्पीड को कांस्टेंट रखा था, अब इस टाइम को कांस्टेंट रखेंगे. सपोज अ पर्सन सेज आई विल ट्रेवल फॉर अ कांस्टेंट टाइम ऑफ 3 आवर्स. मैं अपना टाइम नहीं चेंज करूंगा. इफ हिज स्पीड इज से 40 किलोमीटर्स पर आवर, कैन यू गिव मी द डिस्टेंस? कितना होगा? 40 multiplied by 3? 120 kilometers. Say if his speed is 60 kilometers per hour, what will be the distance? 60 multiplied by 3? 180 will be the distance. Suppose if he decreases his speed to 20 kilometers per hour, what will be the distance traveled? 60. 20 multiplied by 3, क्योंकि उसका टाइम तो फिक्स है. अब आप देखिए यहां पे उसने स्पीड को इंक्रीज किया, 40 से 60 ले आया. स्पीड हैज इंक्रीज्ड, सो यू कैन सी डिस्टेंस आल्सो हैज इंक्रीज्ड. फिर यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो गई तो डिस्टेंस भी डिक्रीज हो गया. सो वी कैन से व्हेन स्पीड गोज अप, डिस्टेंस गोज अप, and when speed goes down, distance goes down. So we can say distance varies directly as speed. Distance varies directly as speed. Say if I ask you, give me ratio of d1 and d2. So can you give me ratio of d1 and d2? दे सकते हो आप? कितना होगा? Yes. 120 by 180. That is 2 by 3. Can you give me ratio of S1 and S2? कितना होगा? 2:3. 2:3 same. So 40 by 60, यहाँ भी क्या मिल गया? 2 by 3. So now we can reach a conclusion. D1 by D2 is equal to S1 by S2. I can write D1 by D2 is equal to S1 by S2 under the condition time is constant. ये समझ में आया? एक चीज आप और नोटिस करिए, मैंने यहां पे स्पीड को क्या किया, 60 से 120 आने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आई एम मल्टीप्लाइंग स्पीड बाय 1/3. तो देखिए डिस्टेंस भी क्या हो गया, डिस्टेंस आल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1/3.
इफ आई कंपेयर 20 एंड 40, जब मैं 20 से 40 जाता हूं, आई एम गोइंग फ्रॉम 20 टू 40, तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम मल्टीप्लाइंग स्पीड बाय 2. When I'm going from 20 to 40, I'm doubling my speed. So when I'm doubling my speed, you can notice my distance also gets doubled. आप जिस नंबर से स्पीड को मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपका डिस्टेंस भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है. Are you getting it? ये चीज समझ में आई आपको? When time is constant, आप स्पीड को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आपका डिस्टेंस भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब एक बार स्पीड को कांस्टेंट रख चुके हो, एक बार टाइम को आप कांस्टेंट रख चुके हो, अब बारी आती है डिस्टेंस की. नाउ सपोज अ पर्सन सेज आई विल मूव फॉर अ फिक्स डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स, आई विल नॉट चेंज माय डिस्टेंस. आप चाहे जो कर लो, मैं अपना डिस्टेंस नहीं बदलूंगा. वो ऐसा बोलता है. ठीक है, अब ऐसा बोलने से क्या हुआ? सपोज हिज स्पीड इज 10 kilometers per hour. So what will be his time? 10 hours. उसका टाइम 10 hours होगा. सपोज उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज करके कर दिया 25. So what will be his time? Anybody please? 4 hours. 4 hours. Suppose he decreased his speed to 20. His time will be 5 hours. Say he again increased speed to 50, time will be 2. Now you can notice when speed increases, यहां से यहां देखो, speed increases, time decreases. स्पीड में इंक्रीज था, टाइम में डिक्रीज था. अब देखिए यहां से यहां स्पीड क्या है? डिक्रीज. तो टाइम क्या हुआ? इंक्रीज. स्पीड इंक्रीज, तो टाइम डिक्रीज. सो वी कैन से व्हेन स्पीड गोज अप, टाइम गोज डाउन, और व्हेन स्पीड गोज डाउन, टाइम goes up. So they are moving in opposite directions. Now because speed and time are moving in opposite directions, so we can say speed varies inversely as time, or time varies inversely as speed. उल्टा रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा. चलिए और एक चीज देखते हैं. If I ask you what is S1 by S2, देख के बता सकते हो what is S1 by S2? 2 by 5. T2 by T1. Right, 10 by 25 or 2 by 5. What is T1 by T2? 10 by 10 by 10 by 4 4. or 5 5 by 2. उल्टा है. 5 by 2. So we can say S1 by S2 is equal to T2 by T1 when distance is constant. चलिए और एक रिलेशन दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा. कंपेयर S1 एंड S3. वी आर कंपेयरिंग S1 एंड S3. मैंने स्पीड को क्या किया? 10 से 20 तक स्पीड क्या हुआ? डबल हुआ ना. ये देखो ये 10 है, अभी स्पीड क्या है? ये 20 है, डबल हो गया ना. स्पीड गॉट डबल्ड. यहां टाइम कितना है? 10. यहां टाइम कितना है? 5. हाँ. टाइम गॉट हाफ्ड. half. और एक चीज देखते हैं, ध्यान से देखिएगा. से S1 से S2 में आते हैं. S1 से S2 में आते हैं. I am multiplying my speed by 5 by 2. ये चीज समझ में आई? If I multiply 10 by 5 by 2, I will get 25. तो मैंने स्पीड को किससे मल्टीप्लाई किया? I multiply speed by 5 by 2. ठीक है. अब इन दोनों केसेस को देखिए. My time
got multiplied by 2/5. 10 से 4 हो गया ना. That means यहां से एक रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? If distance is constant, उस कंडीशन में आप जिस नंबर से स्पीड मल्टीप्लाई करोगे, टाइम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा. रेसिप्रोकल समझते हो? उल्टा, इनवर्स. यदि आपने स्पीड को 2 से मल्टीप्लाई किया तो टाइम विल बी मल्टीप्लाइड बाय हाफ. स्पीड को आपने 3/4 से मल्टीप्लाई किया, सो टाइम विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4/3. 4/3. हाँ जी. क्लियर विद दिस? आगे चलो. चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे. आगे आते हैं, देखिएगा. देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है सबको? It says a car moves for 2 hours at a speed of 25 kilometers per hour and another car moves for 3 hours at same speed. Find the ratio of distances covered by 2 cars. क्या हुआ यहाँ पे? अब क्या रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड? डिस्टेंसेस कवर्ड यानी आपको क्या निकालना है? 2/3 सर. d1 by d2. 2/3. तो d1 by d2 will be equal to t1 by t2. A car moves for 2 hours, ये t1 हो गया, at speed of 25. Another car moves for 3 hours at the same speed. तो यहाँ पे क्या है? Speed is constant. So when speed is constant, ratio of distance is same as ratio of time. तो टाइम का रेशियो आपके पास क्या था? 2:3. तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो गया? 2:3. देखो आंसर इज 2:3. ये आंसर आ गया. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. अ कार ट्रेवल्स एट 30 kilometers per hour for first 2 hours and then travels 40 kilometers per hour for next 2 hours. Find the ratio of distances traveled. बता सकते हो? 3/4. 3/4. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? d1 by d2 किसके इक्वल होगा? s1 by s2, because in both the cases time is constant. टाइम फिक्स है ना, 2 hours. तो ये कितना आ गया? 3/4 आ गया. सो डिस्टेंस का रेशियो इज सेम एज रेशियो ऑफ स्पीड. सो आंसर इज, देखो ये आंसर आ गया. वी हैव गॉट द आंसर 3/4. यही आया हम लोगों का भी. नेक्स्ट देखते हैं. चलिए, जस्ट ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. आई एम गिविंग यू सम टाइम. मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग सॉल्व करो जरा. हो गया? Sir, 2/3. हाँ जी, हुआ? सॉल्व हुआ? Yes sir. 2/3. 2/3. देखो आंसर आ गया 2/3. देखिए, 2 cars leave simultaneously from points A and B. So this is a straight road. This is some point A. This is some other point B. The distance between A and B is 100 kilometers. They meet at a point 40 kilometers from A. So this is some point C, 40 kilometers from A. So that means कार A, जो कार पॉइंट A से चली है, उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 40. तो इसने कितना कवर किया होगा? 60. So now I can say distance covered by car 1 is 40 and distance covered by car 2 is 60.
आर दे टेकिंग सेम टाइम? दोनों का टाइम सेम है ना, बिकॉज इट सेज 2 cars लीव साइमल्टेनियसली. 2 cars लीव साइमल्टेनियसली. तो जितनी देर में यहां से कार 1 ने यहां तक ट्रेवल किया, उतनी ही देर में कार 2 ने यहां से यहां तक ट्रेवल किया. सो टाइम दोनों कार्स का सेम है, राइट? सो d1 by d2 is same as s1 by s2. तो s1 by s2 मुझे क्या मिल जाएगा? 40 by 60 या फिर 2:2. Anyone, any doubt with this? Clear है? नेक्स्ट ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 4 करो जरा. Sir, 400. 400 फ्रॉम विच प्लेस? 400 कहां से? ए से या बी से? Sir, ए B से, से. ए से. B से. सर बी से 400 या ए ए से? सर ए से. Sir, A से. A से 400. A से. से 400. Let's see the answer. E से. Answer is 400 meters from A. Yes. Not meters, should be kilometers. This should be kilometers. देखिए, simple है. 2 cars simultaneously moves from point A and point B. And what is the distance? Distance is 900 kilometers. ठीक? They meet at some point, say D. यहाँ पे दोनों cars मिल जाती हैं किसी point D पे. Now this is the distance traveled by first car and this is the distance traveled by second car. We are given with the speeds. So ratio of distance is again same as ratio of speeds. Speed का ratio कितना आएगा? 20/25 और 4/5. So you are supposed to divide this 900 in the ratio 4:5. तो एक कार ने कवर किया 400 और दूसरी कार ने कवर किया 500. तो जो कार यहां से चलती थी 25 की स्पीड पर, बिकॉज इट सेज ना 20 and 25 रेस्पेक्टिवली, तो ये वाली कार 25 से आती है और ये वाली कार 20 से आती है. तो जो कार 20 से आती है वो 400 कवर करेगी. तो ये वाला लेंथ आपका 400 है और ये वाला 500 है. ए से कितना डिस्टेंस हो गया? 400. ए से डिस्टेंस हो गया 400. इज दैट क्लियर? एनीवन एनी डाउट विद दिस? चलिए, ट्राई आउट क्वेश्चन नंबर 5. Sir, 80 minutes. 80 minutes. Okay. Anyone else? Sir, 80 minutes. 80 minutes. Okay. Very good. और कोई? हाँ जी. 80 minutes. 80 minutes आ रहा है. Okay. Very good. Anyone else?
और किसी का आ रहा है? Anybody else getting the answer? बेटे किसी के बैकग्राउंड में बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, जिसके आ रहा है प्लीज म्यूट कर लो। हाँ जी, एनीवन एल्स गॉट द आंसर? चलिए, लेट्स सी द आंसर। Let's see the answer. Answer is 60 minutes. Please see it very carefully. It says train सर meets मेरा भी 60 आ रहा था। बताया क्यों नहीं? सर मेरे को लगा सबका 80 है तो मेरा गलत है। अरे नहीं, सबका भी गलत हो सकता है। देखो तुम्हारा सही था। It says a train meets with an accident and moves at 3/4 its original speed. Say these are 2 points, P and Q. Train is supposed to travel from P to Q. At some point R, it met with an accident. अब R से Q का D डिस्टेंस S स्पीड से T टाइम में कवर होता था। यदि एक्सीडेंट नहीं होता तो S स्पीड से T टाइम में डिस्टेंस कवर हो जाता, बट एक्सीडेंट होने से क्या हुआ? नाउ इट इज मूविंग एट 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। अब डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, तो आपने स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3/4 से। सो व्हाट इज न्यू स्पीड? 3/4 इंटू एस। नाउ आपने स्पीड को 3/4 से मल्टीप्लाई किया, सो टाइम शुड बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 4/3। 4/3। तो ये आपका नया टाइम है और ये आपका पुराना टाइम है। नए वाले केस में देखिए टाइम ज्यादा लग रहा है। क्वेश्चन से ड्यू टू दिस इट इज 20 मिनट्स लेट। अब 20 मिनट्स लेट का मतलब हुआ आपको रेगुलर टाइम से 20 मिनट्स एडिशनल लग रहे हैं। सो आई कैन से रेगुलर टाइम प्लस 20 मिनट्स इज इक्वल टू योर न्यू टाइम। सो आई कैन से 20 इज इक्वल टू 4t/3 minus t, that is t/3. So what is t equal to? This 3 multiplied by 20 cross multiply हो जाएगा. So what is t equal to? 60 minutes. So question is asking original time for journey beyond the point of accident. So this t is equal to 60. Clear work? सर हाँ बोलो। सर मैं थोड़ी देर के लिए बीच में डिस्टर्ब हो गया था, मेरा लाइट चली गई थी। सर ये आपने टाइम को 4/3 क्यों लिया? उसे मल्टीप्लाई क्यों मैंने किया? स्पीड को किससे मल्टीप्लाई किया? 3/4 से। तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो क्या करते हैं? इफ आई मल्टीप्लाई स्पीड बाय 2 माय टाइम गेट्स मल्टीप्लाइड बाय हाफ। ये पढ़ा था आपने? यस सर। सो हाँ, इफ आई एम sir. मल्टीप्लाइंग स्पीड बाय 3/4 आई विल मल्टीप्लाई टाइम बाय 4/3। 4/3. सो दिस इज माय ओके। ओल्ड टाइम, दिस इज माय न्यू टाइम। टाइम। इसमें 20 मिनट्स लेट करूंगा, यानी आई विल ऐड 20. सो t plus 20 is 40/3 and t is 60. So my time will be 60 minutes. 60 minutes. नेक्स्ट ट्राई करो। ट्राई आउट क्वेश्चन नंबर 6.
हुआ? सर 20। 20। ओके, लेट्स सी, देखते हैं अभी। और कोई? सर 16 किलोमीटर। ओके, लेट्स सी, अभी देखेंगे। 20, 16, दो आंसर्स आ गए मेरे पास। और कोई? सर 17.5 किलोमीटर। 17.5। ओके, एक आ गया 16, एक आ गया 20, एक आ गया 17.5। लेट्स सी, देखेंगे अभी। और कोई? एनीवन एल्स? बता रहे हैं। हाँ हाँ, आराम से बताओ, कोई जल्दी नहीं। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। आज एक बार क्लास खत्म करके ना सब लोग ग्रुप में अटेंडेंस दे देना, अटेंडेड, प्रेजेंट, प्रेजेंट ऐसे लिख देना, जो लोग क्लास कर रहे हैं, सो दैट आई जस्ट नो। मेरे पास अभी क्योंकि पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट नहीं आ पा रही है, इस पे खाली नंबर दिखा रहा है। सो जस्ट राइट प्रेजेंट आफ्टर द क्लास इन द ग्रुप। हाँ जी, एनीवन एल्स गॉट द आंसर? चलिए लेट्स सी, देखते हैं। दिखाओ आंसर, दिखाओ। आई एम जस्ट शोइंग द आंसर। ये तो 8 आ गया। ओ तेरी, सभी बदल गया है तो। देखो, व्हाट इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब देखिए, क्वेश्चन सेज a man travels from his house to his office at 5. If he goes at 5, he reaches his office 20 minutes late. 20 minutes late का मतलब है यदि उसका रेगुलर टाइम t मिनट्स था तो आज उसको लग रहा है t + 20। मैं रेगुलर टाइम ले रहा हूं t मिनट्स, ठीक है, t इज इन मिनट्स। ये हो गया। अब क्या कहता है, इफ हिज स्पीड had been 7.5 किलोमीटर पर आवर, यदि उसकी स्पीड 7.5 होती, he would have reached 12 minutes early। कम लगती। यही किया था। let us equate these two, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 into t plus 20 is equal to 7.5 multiplied by t minus 12। इसको कैंसिल करते हैं 2.5 से, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। सो 2t plus 40 is equal to 3t minus 36। So what is t equal to? 4। 76 minutes। 76 minutes। t is equal to 76 minutes। Now distance कैलकुलेट करना है, तो ये t 76 चाहे यहाँ सब्स्टिट्यूट करो चाहे यहाँ, मैं पहली इक्वेशन में रखता हूँ। So d is equal to 5 into 76 plus 20, ये 96 minutes है। So I will divide it by 60। 5 ones are 5, 5 12s are, 12 ones are, and 12 8s are। So what is my distance? 8 kilometers। What is my distance? My distance is 8 kilometers। Is that clear to you? Yes, sir. 8 kilometers क्लियर है सब लोगों को? यस सर। तो ये तीनों आंसर नहीं है। These three are not the answers. Answer is 8 kilometers। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। Just try to solve this question।
आई एम गिविंग यू 3 minutes. Anji, anyone got the answer? Sir, 12. 12. 12. Yes, sir. Yes, sir, 12. Let's see the answer. देखते हैं. जहां तक मुझे भी ध्यान है आंसर 12 है. 12 किलोमीटर पर आवर. Great. देखिए, a man cycles with speed of 10 kilometers per hour and reaches his office at 1 p.m. However, when he cycles with speed of 15, he reaches his office at 11. At what speed should he cycle so that he reaches his office at 12 noon? So my right time is 12 noon. So when I'm reaching at 1, I'm 1 hour late. And when I'm reaching at 11, I'm 1 hour early. Early. ये हो जाएगा 10 से जाता हूं तो 1 घंटा लेट होता है, तो आई एम 1 hour लेट. तो ये अब मैंने आवर्स में ले लिया, ठीक है. एंड व्हेन आई एम गोइंग एट 15, आई एम रीचिंग 1 hour अर्ली. तो टी मिल जाएगा. 5 2s are 10, 5 3s are 15. So it's 2t plus 2 is equal to 3t minus 3. So it gives me t as 5. That means my regular time is 5 hours. So regular time is 5 hours. That means I will start at what time? 7 a.m. I should start at 7 a.m. 7. ठीक है. अब distance आ जाएगा. What is my distance? 10 multiplied by 5 plus 1. So my distance is 60. And my regular time is 5 hours. So my speed should be Is that clear? Anyone, any doubt with this? चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा कोशिश करो. टेक योर टाइम, 2 minutes. हाँ जी, हुआ किसी का? ओरल है क्वेश्चन ये वाला. सर ए. ओके. एनीवन एल्स? थोड़ी सी गलती हो रही है, मैंने स्विच है, चेक करो. अच्छा. सर बी. सर बी. बी. सर सॉरी बी 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 बी. सर बी. ये देखिए आंसर इज बी. सिंपल है प्रोसेस. देखिए, difference between time taken in covering a certain journey decreases by 45 minutes when a speed is increased from 10 to 20. 10 to 20 यानी आपने स्पीड को क्या किया? डबल किया. जब स्पीड डबल किया तो टाइम क्या होगा? हाफ. ठीक है, हाफ हुआ, इसका मतलब डिक्रीज कितना है? डिक्रीज भी हाफ का ही है. अब यदि हाफ ऑफ टाइम डिक्रीज 45 है तो फुल टाइम कितना होगा? 90. फुल टाइम इज 90.
मिनट्स। ठीक, अब 90 मिनट्स विद 10, 90 मिनट्स विद स्पीड ऑफ 10, तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 90/60 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो डिस्टेंस कितना आ गया? 15 किलोमीटर्स। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, what is the difference between time taken when same distance is covered at speed of 40 and 25? So 15/25 निकाल सकते हैं और 15/40 निकाल सकते हैं। अब 15/25 कितना हो गया? 3/5 into 60, that is how many minutes? 36 minutes. 22s are 23s are 7.5 into 3, 22.5 minutes, दोनों का डिफरेंस 13.5 minutes is the answer. So my answer will be option number B. Is that clear? ठीक है, तो मैं भी एक बार इसको इतना पोर्शन रिकॉर्ड करने के लिए स्टॉप कर रहा हूं. आई विल बी रिकनेक्टिंग इन 10 मिनट्स. ठीक है, Okay, sir. आई विल रिकनेक्ट